हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ और हमने कहा था कि नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी द वेपर प्रेशर। तो आज हम लोग विल डिस्कस वेपर प्रेशर। इसको समझने के लिए यू कीप योर नोट्स बिफोर यू, अपना नोट सामने रख लीजिए, उसको देखते रहिए और साथ साथ बोर्ड पे भी देखिए तो एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा। वेपर प्रेशर समझने के लिए लेट वी स्टार्ट विद द डायग्राम। एक छोटा सा डायग्राम है, इसे हम लोग देखते हैं। Now this is a closed vessel in which a certain liquid is there, which is volatile liquid. It is connected by means of a manometer. Manometer एक simple इंस्ट्रूमेंट जिससे कि प्रेशर मेजर किया जाता है। The two limbs are there जिसमें कि मरकरी भरी हुई है. This is the liquid. Now what happens initially? Liquid convert into vapor. This process is called as vaporization. शुरू में process of vaporization, rate of vaporization is quite slow. धीरे धीरे it keep on converting into vapor. More and more vapor is there. After some time what we find that during that time there is a movement of the mercury level into the manometer. After some time what we find that when vapors are more in the vessel, some of the vapor come in contact of the liquid. और जब ये लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं तो दे कंडेंस इनटू द लिक्विड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. A stage comes where the rate of vaporization becomes equal to the rate of condensation. That is the equilibrium between the vapor and the liquid, and at that stage the vapor pressure due to the vapor becomes constant at constant temperature. Condition temperature constant होना चाहिए. Now liquid convert into vapor, this is the vaporization, and vapor convert into liquid back into the condensation. When their rate are going to be equal, then the equilibrium is attained, and at that point we measure the vapor pressure. तो इस जगह पे अब हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं. So vapor pressure is defined as the pressure due to vapor in equilibrium with liquid at constant temperature is called as vapor pressure. देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, pressure due to vapor in equilibrium with liquid at constant temperature is called vapor pressure. Vapor pressure is a characteristic property of a liquid. For different liquid के लिए at constant temperature the vapor pressure is a constant value. That's why it is said that it is a characteristic value of the liquid. Now certain properties of the vapor pressure is there. Vapor pressure is directly proportional to temperature. As the temperature increases, the vapor pressure will also increase because more and more vapor will be formed. ज़्यादा ज़्यादा vapor बनेगा तो pressure भी ज़्यादा होगा. Second one is, ये हम लोग का पढ़ा हुआ है, temperature at which vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, then that temperature is called as boiling temperature or boiling point. So that we have discussed already earlier. Now this is the most important property. The liquid having the high boiling point, they always having the low vapor pressure. For example, water का boiling point 373 केल्विन होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा. ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कम वेपर बनेंगे और कम वेपर बनेंगे तो प्रेशर भी कम होगा. ऑन द अदर साइड, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड हैविंग द हाई वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन टेम्परेचर है. तो 351 लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दिस इज द हाई बॉइलिंग पॉइंट. लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हाई वेपर प्रेशर एंड दिस वन इज द लो वेपर प्रेशर. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द लास्ट वन जो कि हम लोग को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है इसके बारे में, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ऐसा सल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर, उसको जब हम एक प्योर लिक्विड में या एक प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, then the vapor pressure of solution is always decreased, and that is studied by Raoult's law. that was studied by Raoult's law, जो कि हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. Raoult's law is a very much important, means उन्होंने वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड पे अपनी स्टडी की थी और ये दो कंडीशन में अप्लाई होता है. इन टू केसेस इज अप्लाइड. हमने कहा द फर्स्ट वन इज द सोल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड. एक कंडीशन ये होगा जिसको कि हम लोग लिक्विड सोल्यूशन भी कहते हैं. और सेकेंड केस होगा जिसमें कि सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट. तो ये दोनों कंडीशन के लिए दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो वन बाय वन विल डिस्कस.
द राउल्स लॉ। फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस का मतलब लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। सपोज किया जाए टू वोलेटाइल लिक्विड्स आर देयर, जिसको कि हम लोग ए एंड बी मान लें, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, एंड देयर पार्शियल वेपर प्रेशर इज पी ए एंड पी बी। ये इनका वर्ड, द पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। अब दोनों का अगर प्रेशर हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स। So let this is the PS. So PS would be equal to PA plus PB, means total vapor pressure of the solution will be equal to the partial pressure of liquid A and partial pressure of liquid B. Okay. Now according to the Raoult's law, first definition जो उन्होंने explain किया, what he explained that partial vapor pressure of each component of the solution, that is A and B, each liquid A and B, is directly proportional to their mole fraction in the solution at constant temperature. फिर से एक बार, vapor pressure of the partial vapor pressure of each liquid is directly proportional to their mole fraction. उनके mole fraction के directly proportional होगा in the solution at constant temperature. तो अगर इसको अप्लाई किया जाए तो what we find that PA proportional to XA, partial vapor pressure of liquid A is directly proportional to mole fraction of A, and at the same time the partial vapor pressure of liquid B is directly proportional to the mole fraction of liquid B in the solution. अब इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए, let me clean this one. So what we find that PA is equal to P naught A XA, where P naught A is a proportionality constant. Similarly, PB would be equal to P naught B XB, where P naught B is also the proportionality constant of liquid B. This is the constant of pure solvent, जो कि हम लोगों ने अभी वेपर प्रेशर में पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है. सो दिस P नॉट A एंड P नॉट B आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड. तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल वेपर प्रेशर निकाला जाए, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PS, इन दैट केस ये दोनों का एडिशन हो जाएगा PA प्लस PB. PA के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया. सो इट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज वेपर प्रेशर ऑलवेज चेंजेस विद द टेम्परेचर. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू लिक्विड साइमल्टेनियसली. अब अगर हम लोग जानते हैं सिंस x इज इक्वल टू, बल्कि इसको ऐसे ले लिया जाए, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है. तो अब यदि इस एक्सप्रेशन को हम लोग यदि एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो दैट कैन बी डन, उसको किया जा सकता है. जैसे XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा. अब ये XA को इस इक्वेशन में XA को रिप्लेस कर दे 1 माइनस XB से. सो व्हाट द एक्सप्रेशन विल बी देयर, देन PS इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB. इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है ना? XA को हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस XB से. अब इसको एक्सपेंड कर लिया जाए, P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए. लेट मी रीअरेंज इट. PS is equal to P naught B XB minus P naught A XA, sorry, XB, and then plus P naught A. Now in this case what we find that XB is going to be the common, so P naught B minus P naught A plus P naught A. Now this is the vapor pressure of liquid in terms of the mole fraction of one liquid.
एक्सप्रेशन जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स देखते रहिए आप लोग अपना अपना, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन लिक्विड। इसी तरह से हम लोग एक्स बी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस केस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। इसको रिप्लेस किया जाए तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए आ गया, फिर से इसको एक्सपेंड कर लिया जाए तो इट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। फिर से रीअरेंज कर लें इसे तो इट इज पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। Again we are getting the common here xa, mole fraction of liquid A is common, so it is P naught A minus P naught B plus P naught B. Now this is the expression in terms of the mole fraction of another liquid B. So ये दो एक्सप्रेशन हम लोग को मिल गई जहाँ पे कि हम लोग लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन लिक्विड ओनली। ओके, सो वी डिस्कस्ड तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ राउल्स लॉ। उसके लिए हम लोगों ने दो एक्सप्रेशन डिराइव किया, जिसमें कि दोनों एक्सप्रेशन में हम लोगों ने एक खास चीज़ देखा कि देयर वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, वन लिक्विड ए और बी था। नाउ वन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, राउल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू द सोल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी द सोल्यूशन शुड बी द होमोजीनियस। इट इज़ नेवर एप्लीकेबल टू द लिक्विड विच आर इमिसिबल, जो कि नोट्स में भी लिखा हुआ, आप लोग देख रहे होंगे नोट्स अपना, और हमने लिखा भी है फर्स्ट डेफिनेशन और लॉ, फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू होमोजीनियस सॉल्यूशन, दैट इज टू मिसिबल लिक्विड मस्ट बी देयर। नाउ राउल्स लॉ फर्स्ट डेफिनेशन को हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हाट वी डिस्कस दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई द ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि हम लोग सोल्यूशन दो लिक्विड का ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाई द टू ग्राफ विल बी डिस्कस साइमल्टेनियसली। दोनों ग्राफ को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द वाई एक्सिस फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड फॉर दिस इज द लिक्विड बी, एंड एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है। थ्री लाइन्स यू आर ऑब्जर्विंग हियर, दो डॉटेड लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है। डॉटेड लाइन्स आर फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल लिक्विड, एंड द स्ट्रेट लाइन इज फॉर द complete solution के लिए। Now line 1 and line 2 they are passes through the origin when the mole fraction of each component is unity, x is equal to 1 and xb is equal to 1, ये इनके origin से पास कर रहे हैं। फर्स्ट वाले के लिए P A is equal to P naught A x A के बराबर होगा, and partial pressure of second liquid will be equal to P naught B into xb, ये हो गया। Now when we join these two P naught A and P naught B, then it gives the total vapor pressure of the solution, Ps is equal to P naught A P naught B, means Pa plus Pb के बराबर। Now the maximum value of the solution, maximum vapor pressure value of the solution would be equal to the P naught B and the minimum value would be equal to the P naught A. Condition is that यहाँ पे एक चीज मान के चलते हैं, लिक्विड ए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, या फिर ये कहा जाए लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल, सॉरी लिक्विड बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, तब ये चीज एकदम क्लियर हो जाता है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राउल्स लॉ फर्स्ट डेफिनेशन। ये तो हम लोगों ने देखा द कंपोजिशन ऑफ द टू लिक्विड इन द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन। नाउ अनदर पार्ट इज देयर, क्या हम यहाँ पे वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर को वेपर फेज में भी मेजर कर सकते हैं? वेपर फेज के टर्म में कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं वेपर प्रेशर की? सो द क्वेश्चन, द आंसर इज यस। इन दैट केस जैसे हमने लिखा यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द पार्शियल वेपर, पार्शियल द प्रेशर इन वेपर फेज स्टेट, यहाँ पे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन लिया था, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वेपर फेज। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं कि वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर ऑफ लिक्विड बी।
अगर ये मान लिया जाए, पहले वाले हम लोगों ने x लिया था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन y के टर्म में ले रहे हैं. देन अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पी ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू वाई ए इंटू पी एस के बराबर होगा. वाई ए इज the mole fraction of vapor of liquid A into total vapor pressure of the solution. And similarly partial pressure PB, liquid B का partial pressure will be equal to the mole fraction of the vapor of the liquid B into total vapor pressure. तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग पार्शियल प्रेशर के कंपोजिशन को इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज या वेपर फेज में पार्शियल वेपर प्रेशर को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं. न्यूमेरिकल के लिए आगे हम लोग एक हमारा एक वीडियो होगा जिसमें कि केवल हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो दिस इज कंप्लीट पार्ट ऑफ द राउल्ट्स लॉ फर्स्ट डेफिनेशन. नाउ another case, a very important part we are going to discuss, I am going to discuss here, and that is Raoult's law. Raoult's law is a special case of Henry's law. Raoult's law is a special case of Henry's law. इसका मतलब यह है कि राउल्ट्स लॉ कोई अपने आप में नया नहीं है. हेनरीज लॉ का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है. ठीक है, दैट विल डिस्कस हियर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी मच इंपॉर्टेंट. कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सिंस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, दिस इज राउल्ट्स लॉ, and P is equal to KH into X, this is the Henry's law. ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी हम लोगों ने रॉल्ट्स लॉ की फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस की है और ये हम लोगों ने हेनरीज लॉ पहले किया था. इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो व्हाट वी फाइंड दैट इन बोथ द केसेस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वन कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड. एक कंपोनेंट के टर्म में नहीं है. एंड इन केस ऑफ द हेनरीज लॉ the pressure is directly proportional to the pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. It means, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही केस में pressure is directly proportional to the mole fraction of the component. It means both are similar in terms of the pressure and mole fraction. तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे P नॉट A and KH में, and both are the constant value. This is the Henry's law constant and this one is the vapor pressure of the pure solvent. ये pure solvent A हो गया and this is the Henry's law constant. These two constants are differ. They differ only in the value of the constant. इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में सिमिलरिटी है. सो बिकॉज ऑफ दैट वन हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि पहले हेनरीज लॉ आया, उसके बाद राउल्ट्स लॉ आया. व्हाट कैन वी से दैट राउल्ट्स लॉ इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. ये यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट यू हैव टू understand clearly and you have to remember it and learn it because several times it has been asked in the board examination. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. That was the very much important point what we discussed. जैसा कि स्टार्टिंग में उन्होंने डिस्कस किया था, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल अंडर टू कंडीशन. द फर्स्ट वन वाज द सॉल्यूशन हैविंग द टू मिक्सिबल लिक्विड सॉल्यूशन, और सेकंड था सॉल्यूशन हैविंग अ वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड डेफिनेशन के लिए. सेकंड कंडीशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी वोलेटाइल लिक्विड. ओके, यानी सेकेंड डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. इन दिस केस, अंडर सच कंडीशन या इन दिस केस, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always equal to the vapor pressure of pure solvent. The reason is that non-volatile solute does not convert into vapor form. So that's why, since mole fraction of solvent
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें सोल्यूट डिजॉल्व है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी. सो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा. चलिए इस चीज़ को हम लोग ये दो डायग्राम से समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है. फर्स्ट डायग्राम जो है ये प्योर सॉल्वेंट है एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट है. इन दिस केस प्योर सॉल्वेंट है तो ये पूरे सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मतलब कि दो लिक्विड का भी हो सकता है, एक प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है. तो इस पूरे सरफेस से लिक्विड जो है इट कन्वर्ट इनटू द वेपर. पूरे सरफेस से 100% सरफेस से लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म अंडर वेपराइजेशन. तो इस केस में वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे जो भी होगा. अब यहाँ पे देखा जाए ये डॉट डॉट जो हमने बनाया हुआ है ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूट पार्टिकल, क्योंकि इसमें सोल्यूट पार्टिकल भी है. यहाँ पे केवल सॉल्वेंट था. अब ये जो सोल्यूट पार्टिकल सरफेस पे है ये तो इतना स्पेस क्या कर ले रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है. तो जहां जहां पे ये सोल्यूट पार्टिकल है यहाँ से सॉल्वेंट के वेपर्स तो ये पास नहीं होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे. यहाँ पे 100% हो रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 जितने भी ये पार्टिकल उतने वेपर्स तो कम जा रहे हैं ना. तो इसका मतलब कि यहाँ पे वेपर्स जो आएंगे सोल्यूशन के, वो वेपर्स का वेपर प्रेशर जो होगा इसके वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस वेपर्स आर देयर. इन दिस केस द मैक्सिमम वेपर्स आर देयर. So that's why the vapor pressure, partial vapor pressure of a solution having a non-volatile solute is always less than the pure solvent itself. हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेंगे और उस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा. ये एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए. सेकेंड डेफिनेशन इसी पे बेस्ड है. नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वेरी सिंपल. सो देखा जाए अब यहाँ पे लेट कर लिया जाए कि XA is the mole fraction of solvent, pure solvent, and XB is the mole fraction of the non-volatile solute. Second definition को समझने के लिए XA is the mole fraction of solvent and XB is the mole fraction of non-volatile solute. Then according to the first definition जो हम लोगों ने expression derive किया था PS is equal to P naught A XA plus P naught B XB, ये हम लोगों ने किया था. Now इसी से अब हम लोग second definition को derive करेंगे. तो let's see. So PS is equal to P naught A XA plus P naught B XB, but P naught B is equal to 0 because solute is non-volatile. ये non-volatile है इसलिए P naught B क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी PB क्या हो जाएगा, ठीक है ओके. P naught B क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इसका कोई प्रेशर ही नहीं होगा, ये वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता है. नाउ लेट मी रिप्लेस दिस वैल्यू इन दिस केस. सो व्हाट वी फाइंड दैट PS इज इक्वल टू P naught A XA प्लस 0. ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया. दैट इज PS इज इक्वल टू P naught A XA. सिंस ये भी हम लोग को मालूम है XA is equal to 1 minus XB के बराबर होता है. Sum of the two component is always equal to 1. Mole fraction, sum of the mole fraction of two component is always equal to 1. तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो टोटल सम से हमेशा एक से लेस होगा. अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए तो PS इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P naught A इंटू 1 माइनस XB इन टर्म्स ऑफ the mole fraction of the non-volatile solute. एक्सपेंड किया जाए इसको P naught A minus P naught A minus XB. ये हो गया. इसको रीअरेंज किया जाए तो रीअरेंज करने पे PS इसको इधर ले जाए और PS को उधर ले जाए. तो व्हाट वी फाइंड दैट P naught A minus PS is equal to P naught A. Just a minute, it is multiply. So it is P naught A into XB. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द टोटल प्रेशर. इसका मतलब कि टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर से कम हो गया. दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर.
इसी को हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं जब एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। एन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी के बराबर आ गया। नाउ इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। This expression is called as relative lowering in vapor pressure. It's a very important formula. यहाँ पे हो गया lowering in vapor pressure P naught A minus PS is the lowering in vapor pressure divided by P naught A with respect to the partial pressure of the pure solvent. So that's why it is called as the relative lowering in vapor pressure. So अब इसकी definition क्या होगी second law की? Second definition, relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile and non-electrolyte solute. This is the Raoult's law, second definition. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है। नाउ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड this property is called as, it comes under the colligative property. colligative property वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर थिंग, जिसको हम लोग बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस एक्सप्रेशन से हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को, उसके मोलर मास को मेजर कर सकते हैं। सो दैट विल डिस्कस नाउ। P naught A minus PS upon P naught A is equal to XB और XB is equal to mole fraction of non-volatile solute, that is NB upon Na plus NB. Number of moles of solute divided by total number of moles in the solution. यहाँ भी Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए है एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। सो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी सोल्यूशन में, काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू Na। सो व्हाट डू वी डू, इसको हम लोग कर लेते हैं, इफ Na is very much greater या NB is much less than Na, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर से NB को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हो जाएगी P naught A minus PS upon P naught A is equal to NB upon Na। ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब इसको फिर से हम लोग एक बार करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या डेफिनेशन होती है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो दैट इज P naught A minus PS upon P naught A is equal to small w by small m होल डिवाइडेड बाय, ये तो सोल्यूट के लिए हो गया, और ये सॉल्वेंट के लिए हम यहाँ पे कैपिटल W बाय कैपिटल M ले लें। सो मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ये सोल्यूट हो गया, एंड देन फर्दर दिस इज द टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसको रीअरेंज किया जाए, सो व्हाट वी फाइंड दैट P naught A minus PS upon P naught A is equal to small w by small m into capital M upon capital W. By this expression हम लोग यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट को
फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। बाय दिस वन, इसके साथ ही राउल्ट्स लॉ भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। द नेक्स्ट पार्ट दैट विल डिस्कस वुड बी द very important part of the solution, that is the ideal solution.